सर लेक्चर चालू आहे, मी नंतर कॉल करते. हां सर, नंतर कॉल करते. Am I audible to all of you? Am I audible? Thank you. Thank you. We started our discussion on low birth weight. Am I right? Yeah. So low birth weight right now, whenever at the time of birth, we measure or we record the birth weight of the baby during first hour of life or during first hour of birth. Okay, and if we find birth weight, it is less than 2.5 kg, all such babies we are going to call as low birth weight babies, right? And we also studied in last lecture that this is one of the most important serious challenge for developing countries as well as developed countries. Why this is serious challenge? Because low birth weight, it is the most important determinant for increased morbidity and mortality as far as infant mortality is concerned or as far as under 5 mortality is concerned. Okay, and even we have seen that low birth weight, or simply we can say birth weight of the baby, it is the most important factor which determines survival of the baby. Okay. Yeah. So how we are going to define it? Okay. What is the definition? The definition which is given by World Health Organization. According to World Health Organization, the definition, what it includes is low birth weight. It is defined as birth weight less than 2.5 kg, including
2499 grams. Okay, and measurement taken preferably within first hour of life. Okay, so this definition you are supposed to include in your answer. Okay, now whenever we talk about low birth weight babies, we are going to categorize these babies, or our focus should be on two aspects. So one thing, we are going to consider gestational age, and second thing, we are going to consider intrauterine fetal growth retardation, which mainly contributes to SFD babies. SFD babies, here it means small for date babies. Small for date babies. Okay. So first we will try to understand various things concerned with the gestational age. Okay. तो सबसे पहले gestational age को consider करेंगे. Okay, so according to gestational age, we are going to classify babies. Okay, so based on gestational age, babies can be preterm, or babies can be term, or even they can be post-term. Okay, तो preterm के लिए कौन सा criteria हम use करने वाले हैं? So all those babies which are born before the end of 37 weeks. Okay, before the end of 37 weeks, we are going to call these babies as preterm babies. Okay, what is the criteria for term born babies? The babies which are born after completion of 37 weeks but before completion of 42 weeks. Okay, so what we said, 37 weeks completed है लेकिन 42 weeks completed नहीं है. Okay, so these babies are term born babies. Okay, now the criteria for post-term babies is very simple. Okay, so all those babies which are born after completion of 42 weeks. Okay, so 42 completed weeks and any time thereafter, if birth occurs, we are going to call such babies as post term babies. Okay, तो कुछ numbers है, कुछ figures है जो सिर्फ आपको याद रखने हैं. Okay, तो preterm के लिए हमने देखा, preterm के लिए we have seen before end of or before completion of 37 weeks. Okay, for term 37 completed weeks but before 42 completed weeks. Okay, और 42 weeks complete हुए हैं उसके बाद अगर डिलीवरी हो जाती है तो ये बेबीज को हम बोलेंगे पोस्ट टर्म बेबीज. ओके, ओके, नाउ अगेन यहाँ पे व्हाट वी आर सपोज टू सी, ये बेबी का बर्थ प्रीटर्म हो, टर्म हो या फिर पोस्टर्म हो. ओके, वेदर बेबी इज प्रीटर्म बॉर्न, वेदर बेबी इज टर्म बॉर्न, और वेदर बेबी इज पोस्ट टर्म बॉर्न. ओके, इफ द वेट ऑफ बेबी is less than 2.5 kg irrespective of gestational age, we are going to categorize such babies as low birth weight babies. Okay, is it clear? So this aspect should be very clear. Gestational age चाहे कुछ भी हो, चाहे वो postterm baby भी ना हो, okay, लेकिन उसका birth weight अगर 2.5 kg से कम है, okay, तो वो बेबी को हम इंक्लूड करेंगे लो बर्थ वेट में. ओके, तो जितने भी हमने देखे प्रीटर्म बेबी है, टर्म है या फिर पोस्ट टर्म है, ओके, इनमें से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ लो बर्थ वेट इट इज मेनली सीन इन प्री टर्म बेबीज. ओके, सो फॉर प्री टर्म बेबीज व्हाट वी सेड, द बेबीज बॉर्न बिफोर द एंड ऑफ 37 वीक्स. ओके, तो इन बेबीज में लो बर्थ वेट की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है. ओके, तो ये बेबीज को हम सब कैटेगराइज करेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सब कैटेगराइज दीज बेबीज एंड दे आर सब कैटेगराइज्ड इनटू 3 aspects. Okay, so here the babies can be extremely preterm, or these preterm babies can be very preterm,
और दे कैन बी मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म। ओके, तो कौन से बेबी को हमें एक्सट्रीमली प्रीटर्म बोलना है, कौन से बेबी को हमें प्रीटर्म वेरी प्रीटर्म बोलना है, और कौन से बेबी को मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म बोलना है, यहाँ पे भी हम देखेंगे जेस्टेशनल एज। ओके, सो द बेबी इफ इट इज बॉर्न, द बेबी इफ इट इज बॉर्न बिफोर 28 वीक्स, ओके 28 वीक्स से पहले है, तो इसे हम सबसे फर्स्ट एक्सट्रीमली प्रीटर्म में इंक्लूड करेंगे। ओके, सो एक्सट्रीमली प्रीटर्म में जितने भी बर्थ 28 वीक्स से पहले होने वाले हैं वो बेबीज को वी आर गोइंग टू इंक्लूड एज एक्सट्रीमली प्रीटर्म। ओके, वेरी प्रीटर्म में व्हाट वी कंसिडर इज 28 वीक्स, 28 to 32 weeks. Okay, 28 to 32 weeks, right? तो वेरी प्रीटर्म 28 के बाद 32 से पहले जो बर्थ होने वाले हैं दैट बेबीज विल बी वेरी प्रीटर्म बेबीज। ओके, नाउ व्हाट क्राइटेरिया रिमेन्स फॉर द मॉडरेट टू लेट? इट इज सिंपल। ओके, इट इज सिंपल, हियर इट इंक्लूड्स 32 weeks to 37 weeks। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जेस्टेशनल एज हमें देखना है। जेस्टेशनल एज के हिसाब से प्री टर्म बर्थ है, टर्म बर्थ है या पोस्ट टर्म बर्थ है, ये हमने देखा। ओके, तो प्री टर्म में 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जाती है, ओके, तो ये बेबीज को हम प्री टर्म बेबीज बुलाने वाले हैं। ओके, या प्री टर्म बर्थ वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज। यहाँ पे वापस प्री टर्म बेबीज को हमने सब कैटेगराइज किया। ये बेबी एक्सट्रीमली प्रीटर्म हो सकती है, ये बेबी वेरी प्रीटर्म हो सकती है, या फिर मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म हो सकती है। ओके, जस्ट 3 नंबर्स आपको पता होना चाहिए, 28, 32 एंड 37। ओके, 28 वीक से पहले है तो एक्सट्रीमली प्रीटर्म, 28 टू लेस देन 32 वीक्स है तो वेरी प्रीटर्म। ओके, और 32 वीक्स टू 37 तक है तो हमने मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म बोला है। ओके, और आगे आपको पता है 37 वीक्स कंप्लीटेड है, 42 वीक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो ये टर्म बेबी है। ओके, और 42 कंप्लीटेड वीक्स है उसके बाद डिलीवरी हो जाती है तो दीज आर पोस्ट टर्म बेबीज। ओके, तो वट एवर थिंग्स मे बी देयर, वट एवर द लेंथ ऑफ जेस्टेशन मे बी देयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ जेस्टेशन हमें क्या देखना है, बेबी का वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये अगर 2.5 kg से कम है तो लो बर्थ वेट बेबी है। ओके, और इसमें हमने देखा सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा हाइयर रिस्क जो रहती है वो प्री टर्म बेबीज को या फिर प्री मैच्योर बेबीज को रहती है। ओके, सो जिनके डिलीवरी व्हाट वी कैन से इट ऑकर्स बिटवीन 28 वीक्स टू 37 वीक्स। सेकेंड हमने देखा था, दूसरा जो हमें क्राइटेरिया बनाना है उसमें हम क्या देखते हैं इज SFD। ओके, यहाँ पे व्हाट वी सी इज SFD। SFD स्टैंड्स फॉर स्मॉल फॉर डेट। ओके, स्मॉल फॉर डेट बेबीज। ओके, तो यहाँ पे भी बेबी प्रीटर्म हो सकती है या फिर टर्म बॉर्न हो सकती है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर which is responsible for small for date babies is intrauterine fetal growth retardation। ओके, तो IUGR है, IUGR की वजह से स्मॉल फॉर डेट बेबीज है। ओके, तो इनके लिए जो क्राइटेरिया है फॉर द क्राइटेरिया ऑफ स्मॉल फॉर डेट बेबीज, तो इनका जो बर्थ वेट है, बर्थ वेट ऑफ दीज बेबीज इट इज लेस दैन 10th, इट इज लेस दैन 10th परसेंटाइल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दिस इज परसेंटाइल। ओके, दिस इज नॉट परसेंटेज। ओके, तो स्मॉल फॉर डेट बेबीज दे हैव बर्थ वेट विच इज लेस दैन 10th परसेंटाइल ऑफ जेस्टेशनल एज। ओके, तो सेकेंड कैटेगरी इन बेबीज की है। ओके, तो जितने भी लो बर्थ वेट बेबीज हैं उनको हमने डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ जेस्टेशन एक पार्ट देखा, डिपेंडिंग अपॉन IUGR एक देखा। ओके, तो स्मॉल फॉर डेट के लिए
जो क्राइटेरिया हमने कंसिडर किया है बर्थ वेट के लिए, बर्थ वेट इट इज लेस देन 10th percentile of gestational age. Okay, now if our intention is to find out in our area how many babies are born having low birth weight. Okay, so simply how to calculate the percentage of low birth weight babies. Okay, तो ये कैसे हमें कैलकुलेट करना है, क्राइटेरिया बहुत सिंपल है. ओके, इन पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया सबसे पहले हमें क्या देखना है, कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं. ओके, सो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स. अगर हमें ये पता चलता है कि हमारे एरिया में कितने बर्थ हुए हैं, उनमें से कितने बेबीज लाइव है. ओके, तो टोटल ऐसे कितने बेबीज हैं ये हम देखेंगे. दैट विल बिकम आवर डिनोमिनेटर. ओके, फिर उसमें से इन बेबीज में से हमें क्या देखना है, कितने बेबीज हैं जिनका वेट 2.5 kg से कम है या फिर 2500 ग्राम से कम है. यू कैन यूज एनी यूनिट. ओके, लेकिन ये जो वेट है ये बर्थ वेट है. प्रिफरेबली हमने पहले 1 घंटे में रिकॉर्ड किया है या मेजर किया है. ओके, तो दॅट विल बिकम आवर न्यूमरेटर. ओके, म्हणजे आपल्या परिसरामध्ये टोटल जन्माला आलेली जी मुलं आहेत किती लाईफ आहेत आणि त्यांच्यापैकी किती जणांचं वजन 2.5 किलोपेक्षा कमी आहे. ओके, सो हियर वी आर कन्सिडरिंग ओनली लाईव्ह बर्थ्स. ओके, सो दॅट्स व्हॉट द इम्पॉर्टंट कीवर्ड यू शुड नो as far as denominator is concerned. Okay, so total number of live births, out of this how many live born babies they are having birth weight less than 2.5 kg or 2500 grams. अभी हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लायर आया है 100. ओके, सो लो बर्थ वेट 2 marks अगर पूछते हैं तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस फॉर्मूला. ओके, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. ओके, सो लेट्स सी इंसिडेंस ऑफ बर्थ वेट इन इंडिया. इंडिया में कितना इंसिडेंस है. ओके, तो प्रीवियस एडिशन को अगर हम प्रीफर करते हैं, ओके, तो 28% है, 28% लो बर्थ वेट है. ओके, लेकिन अभी 2014 का जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स दिया है 25th एडिशन में, ओके, तो एक रैपिड सर्वे कंडक्ट किया गया था, ओके, इस सर्वे के रिपोर्ट से ये जो इंसिडेंस है लो बर्थ वेट बेबीज का इंडिया में वो कम हुआ है एंड दिस इज 18.6%. ओके, तो राइट नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर, इंसिडेंस ऑफ लो बर्थ वेट इज रिड्यूसिंग इन इंडिया. ओके, लेकिन ये कंपैरिजन हमने किया पहले 28% के साथ. ओके, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर दिस विद द डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, तो डेवलप्ड कंट्रीज में लो बर्थ वेट का इंसिडेंस सिर्फ 4% है. ओके, तो उनके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली वी शुड हैव टू डू लॉट मेनी थिंग्स इन पब्लिक हेल्थ सो दैट वी कैन स्टिल रिड्यूस दिस प्रॉब्लम ऑफ लो बर्थ वेट इन इंडिया. इसके साथ साथ वन मोर थिंग वी विल सी राइट नाउ व्हाट वी सेड कि चाहे वो प्रीटर्म बेबी हो, टर्म हो, पोस्ट टर्म हो, ओके, ज़्यादा पॉसिबिलिटी लो बर्थ वेट की कौन से बेबीज में है, प्री टर्म बेबीज में है. ओके, तो ग्लोबल लेवल के इफ वी सी द इंसिडेंस रिलेटेड विद द 2010. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग एट ग्लोबल लेवल. तो ग्लोबल लेवल पे वर्ड्स में जितने भी बेबीज बॉर्न हुए थे, ओके, तो आउट ऑफ 10 बेबीज 1 और मोर देन 1, सो मोर देन 1 इन 10 बेबीज, ओके, दे वेर प्री टर्म बेबीज. ओके, तो इसमें से 10 में से एक या उससे ज़्यादा प्री टर्म थे. ओके, और इनका जो एस्टिमेटेड फिगर दिया था वो 15 मिलियन. सो व्हाट वी कैन से 15 मिलियन बेबीज are born which are preterm. Okay, and because of this preterm birth, out of these babies more than
1 million babies, more than 1 million babies, okay, due to prematurity or due to preterm birth, okay, death occurs in these babies, okay. तो 15 मिलियन में से 1 मिलियन से ज़्यादा डेथ होने वाली है, चाहे वो डेथ इन्फेंसी पीरियड में हो जाए या फिर अंडर 5, मतलब 5 साल तक, ओके। अंडर 5 मोर्टालिटी को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझना क्या है, instead of these numbers, okay, so preterm birth, this is the most important condition, or we can say this is most important leading cause for the death in children up to 5 years of age, okay। और जब हम डेथ्स या मोर्टालिटी अप टू 5 ईयर्स देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं अंडर 5 मोर्टालिटी, ओके। सो वी कॉल इट एज अंडर 5 मोर्टालिटी। अंडर 5 मोर्टालिटी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ जो रहता है दैट इज प्री मैच्योरिटी और दैट इज प्री टर्म बर्थ। Okay, what are various causes, okay, why the low birth weight babies are there? तो एटियोलॉजी या फिर जो कॉजेस है, बहुत सारे कॉजेस है, ओके, सो मेनी कॉजेस आर देयर। और जब बहुत ज़्यादा कॉजेस होते हैं तो जस्ट इन वन वर्ड वुड यू कैन से इट इज़ हैविंग मल्टी फैक्टोरियल एटियोलॉजी। हम क्या बोलेंगे, दिस इज हैविंग मल्टी फैक्टोरियल एटियोलॉजी, ओके। सो यहाँ पे ये नाम से ही आपको पता चलेगा मल्टीपल फैक्टर्स है विच कैन कंट्रीब्यूट टू ऑकरेंस ऑफ लो बर्थ वेट, ओके। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो 50 से भी ज़्यादा है, ओके। सो देर आर more than 50 factors which can contribute here, but out of these few important things are there that you should not forget, okay। We are going to discuss multiple factors, लेकिन जो most important है, okay, this includes malnutrition, since we are discussing it in relation to the nutrition. Malnutrition, maternal malnutrition to be specifically, it is one of the most important factor. Second important factor is infections, okay, second important factor is infections, and third important factor specifically it is fertility, okay. So don't forget this third name, fertility, okay. Fertility, another LAQ which is frequently asked. Fertility, you are going to study this in preventive obstetrics, okay। तो fertility है, इन्फेक्शंस है, माल न्यूट्रिशन है, ओके, बहुत सारे और भी कॉजेस है, लेकिन दीज 3 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस related to the low birth weight, that's what we can say, okay। Now we will discuss all these causes. First thing, we will try to understand the causes that are concerned with the preterm birth, okay। preterm birth से related कौन से causes है, and secondly what we will discuss is what are the various causes which are concerned with the small for डेड बेबीज, ओके। SFD बेबीज के लिए कौन से कॉजेस हैं, बहुत सारे कॉजेस दोनों जगह पे आ जाएंगे, ओके। प्रीटर्म के भी लिए आ जाएंगे और SFD के लिए भी आ जाएंगे, ओके। सो today we are going to do just one change, okay, in our routine schedule. Ruman, are you there? Ruman? Yeah, start with attendance. Hmm. Yeah, I admitted her right now. Hmm.
I can see her name. I can see her name. Yeah. Yes. Yes. I can't see her name. Hmm. Bhagyashri, Bhagyashri, are you there? Bhagyashri, are you listening to me? Bhagyashri, I think she is not listening to our lecture. Okay, please permit me. Huh? अनिकेत, काय प्रॉब काय प्रॉब्लेम आहे? ओके, ओके, ओके. Bhagyashri, can you listen to me? Bhagyashri, am I audible to you? Ruman, mark her absent. Thank you. Please permit me to. Yes? Okay, let's see in second session. Second session में participant list. You just check that, okay? Yeah, yeah, yeah. Please permit me to end this meeting and you all please rejoin.
येस. हो हो कळालं. पण मग लेक्चर ऐकायला. बर बर ठीक आहे. ओके. ओके. हम्म. प्रेझेंट होती पण ऐकत होतीस का? ओके. Am I audible? Am I audible? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Yeah, so we are discussing different causes, okay, which can lead to low birth weight. And we said we are going to discuss the causes that are concerned with the preterm birth and the causes that are concerned with small for date babies, SFD babies. Okay, so SFD babies के लिए don't forget the criteria: birth weight less than 10th percentile of gestational age. Okay, ये हमने देखा था. Now preterm birth के लिए there are two possibilities. Okay, so the birth process may start spontaneously. It can be spontaneous preterm birth, or the decision can be taken by the doctor. Now, instead of calling doctor here, we will use specific terminology, that is health care provider. Okay, so this can be health care provider इनिशिएटेड प्रीटर्म बर्थ. ओके, जैसे कि मदर के हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बेबी के हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए डॉक्टर हैज इनिशिएटेड इट. ओके, सो स्पॉन्टेनियस हो सकता है या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इनिशिएटेड हो सकता है. ओके, तो स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ यहाँ पे what happens, there is spontaneous onset of labor. One sec. Okay, there is spontaneous onset of labor, and the most important thing here, spontaneous onset, or it may start, okay, following, it may start following. Here I think from ops you can recall this, okay. This is premature rupture of membranes. Okay, and first P, it stands for pre-labor. Okay, so this is pre-labor, premature rupture of membranes. Okay, so following pre-labor, premature rupture of membranes, okay, this preterm birth may start, okay, or there can be spontaneous onset. So here what we are going to discuss, all these things you have studied already in ops. Okay, we are just going to discuss what different risk factors are there which can contribute to दी स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ. ओके, स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ अगर होता है तो उसके लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है ये हम देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग हमें क्या देखना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें एज देखना है, बट दिस एज इट इज कंसर्न विद द प्रेगनेंसी. सो एज एट प्रेगनेंसी, एज एट प्रेगनेंसी में दोनों भी है. ओके, एज एट प्रेगनेंसी इट हैज बोथ थिंग्स. ओके, सो एज एट प्रेगनेंसी में टीन एज में कोई बच्ची है वो अगर प्रेग्नेंट है या फिर एडोलेसेंट एज में प्रेगनेंसी है, ओके, तो मैटरनल न्यूट्रिशन कैन हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन दी बर्थ वेट. ओके,
तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली अगर हम इंटरवेंशन के बारे में सोचते हैं तो इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये टीनेज प्रेगनेंसी या फिर एडोलेसेंट एज में प्रेगनेंसी अगर है तो यहाँ पे व्हाट इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन वी कैन थिंक, हमें क्या करना पड़ेगा. देयर शुड बी डिले. ओके, सो वी शुड हैव टू डिले द एज ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी. ओके, तो उसके लिए जो हमने सेकेंड फैक्टर इनिशियली बोला था फर्टिलिटी है. ओके, फर्टिलिटी इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है. फर्टिलिटी का मतलब है एक्चुअल चाइल्ड बेयरिंग. इट्स एक्चुअल चाइल्ड बेयरिंग. ओके, and regarding fertility in India most of the important thing fertility it starts after marriage. okay, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैरिज का एज बढ़ाना है एंड एज ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी को भी डिले करना है. ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर कंसर्न विद द लो बर्थ वेट. ओके, तो एज के बारे में एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी, उसके साथ साथ अगर मैटरनल एज एडवांस्ड है ओके तो भी पॉसिबिलिटी है. सो बोथ थिंग्स वी आर सपोज टू कंसिडर. ओके, इन एज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज बर्थ स्पेसिंग. ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज बर्थ स्पेसिंग को हमें कंसिडर करना है. बर्थ स्पेसिंग में क्या हो सकता है, ओके, पॉसिबिलिटी कब रहेगी, whenever there is short interval between the pregnancies. ओके, एक झालं की दुसरं बाळ, कमी अंतराने. ओके, बर्थ स्पेसिंग शॉर्ट इंटरवल बिटवीन दी प्रेग्नेंसीज और देर कैन बी मल्टीपल प्रेगनेंसी. ओके, सो मल्टीपल प्रेगनेंसी में ट्विंस है या फिर ट्रिपलेट्स है या फिर क्वाड्रिप्यूल है. ओके, तो जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी रहेगी राइट, अकॉर्डिंगली वी कैन सी the possibility of low birth weight. Okay, another important factor is high parity. So any one of you just tell me meaning of parity here. Okay, ऑप्स आपका हो चुका है. पैरिटी का मतलब क्या है, हाई पैरिटी है तो पॉसिबिलिटी है लो बर्थ वेट की. एनी वन ऑफ यू, ज्याला कोणाला येते त्यांनी पटकन सांगा. GPA सगळं बघितलं असेल तुम्ही. Okay, what is the specific criteria? Yes, we can say this is high parity. लेकिन parity जब हम देखते हैं, high parity में definitely you are supposed to pay attention to number. What is meaning of parity? Parity मध्ये आपण कोणाकोणाला include करणार आहोत? Yes. Parity, meaning of parity, very basic terminology from ops. That is gravida. Full term. Yeah, you are on the track, but rather than saying full term, what we will say here is after the age of viability. Okay, so number of deliveries that have taken place after the age of viability. Okay, तो जितने भी हुए हैं उसको आपको parity में include करना है. Okay, so high parity है तो that we are going to consider. Okay, then another important thing, उसका lifestyle, उसका behavior कैसा है. Okay, तो यहाँ पे smoking, alcohol consumption. Smoking and alcohol consumption, it is most commonly seen in high socio-economic status. Okay, और in western countries. हमारे यहाँ पे जो common है that is tobacco consumption. Okay, तो smoking करती है, excessive alcohol consumption है pregnancy में, तो this can contribute. Okay, low socio-economic status अगर हम देखते हैं, okay, so the people or the pregnant women who are belonging to low socio-economic status, तो यहाँ पे क्या है, excess physical work. तो प्रेगनेंसी में अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करती है, ओके, तो भी पॉसिबिलिटी है. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, न्यूट्रिशनल स्टेटस. न्यूट्रिशनल स्टेटस में दोनों भी है. ओके, इट कैन बी अंडर न्यूट्रिशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इवन इट कैन बी ओवर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी. ओके, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अंडर न्यूट्रिशन रिलेटेड
if we talk about low socioeconomic status. Okay. Another factor which can contribute is maternal infections. Okay. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं. ओके, मैटरनल इन्फेक्शंस है. टू बी स्पेसिफिकली ये कम्युनिकेबल डिजीजेस से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी में HIV का इन्फेक्शन हो जाता है, सिफिलिस है. ओके, और इंडिया में जैसे बहुत सारे जगह पे मलेरिया एंडेमिक है, तो इफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी सफर्स फ्रॉम मलेरिया और अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लो बर्थ वेट. ओके, जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस है वैसे there can be possibility of other diseases, chronic diseases like non-communicable diseases. Okay, if she is hypertensive, okay, if she is having asthma, or if she is having any thyroid disorders, and the most important, if she is anemic. ओके, तो एनीमिया है, हाइपरटेंशन है, या फिर एनसीडीज है. ओके, तो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन birth weight of the babies. Okay, psychological problems we are supposed to consider specifically for those people who are illiterate, who are poor and who are having low socioeconomic status. तो यहाँ पे possibility क्या है is the violence against pregnant women. ओके, तो व्हायलन्स होता है आपल्याकडे बऱ्याच फॅमिलीमध्ये जिथे स्पेसिफिकली खूप गरीब परिस्थिती आहे, दारू पिणारा नवरा आहे आणि बायकोला मारहाण करणं. दीज थिंग्स आर व्हेरी कॉमन. तो ड्युरिंग दिस व्हायलन्स, इफ इंजुरी ऑकर्स टू लोअर एब्डोमेन, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ other complications also, and one of the things can be low birth weight. Okay, some genetic factors can also be there. If there is family history or if there is a maternal history of previous preterm birth, okay, so even that can contribute. Okay, so these are the various things that are concerned. In addition, one more thing which is specifically related with the reproductive tract, तो आप जब एग्जामिनेशन करते हो तो आपको सर्विक्स देखना है, अगर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है. ओके, सो दिस कैन बी अनदर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर. दिस इज फर्स्ट थिंग, स्पॉन्टेनियस जहाँ पे होता है. ओके, और सेकेंड थिंग व्हाट वी सेड इज कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने इनिशिएट किया है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि देयर कैन बी रिस्क टू द हेल्थ ऑफ द बेबी और टू द हेल्थ ऑफ द मदर. ओके, तो फीटल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर क्रॉनिक प्लासेंटल इनसफिशियंसी है, ओके, तो इन दैट केस द हेल्थ केयर प्रोवाइडर में इनिशिएट द प्रोसेस. ओके, मैटरनल अगर हम देखते हैं तो मदर को अगर क्रॉनिक हाइड्रामनियोस है, उसकी वजह से उसे कुछ तकलीफ हो रही है, तो इन दैट केस ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोरिया है, कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स है जो कंट्रोल नहीं हो रहे. ओके, सो दैट कैन बी देयर. और अगर हम दोनों के बारे में सोचते हैं, फीटस और मदर, ओके, तो इट कैन बी प्री एक्लाम्सिया और एक्लाम्सिया. ओके, और इफ देयर इज एंटीपार्टम हेमरेज, if there is abruption of placenta, okay, or if the fetus is having some congenital malformations. Okay, so in that case it can be decision which is taken by the healthcare provider. Now just out of curiosity, can any one of you tell me meaning of preeclampsia and eclampsia? Because again in detail you are supposed to know when you are going to deal with ANC. प्रीएक्लाम्सिया म्हणजे काय आणि एक्लाम्सिया म्हणजे काय, काय दोन्हीमध्ये फरक आहे का एकच आहे? आणि इफ यू कॅन टेल मी PIH, प्रेग्नन्सी इंड्युस्ड हायपरटेन्शन, वेल अँड गुड. कोण सांगेल? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? फास्ट. काय बघायचंय तुम्हाला? दिस इज व्हेरी बेसिक, मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिकल ॲस्पेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टंट क्लिनिकल ॲस्पेक्ट वी कॅन से. कोणीतरी एक जण पटकन बोला. थर्ड इयर एक्झाम देणारे, थर्ड इयर एक्झाम देणाऱ्यांना माहिती असायला काहीच हरकत नाही, ज्युनियर बॅचमधनं. हां हां
हम्म. Yes. Hmm. Yes. Yes. Hmm. और PIH के लिए क्या क्राइटेरिया है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. BP का रेंज कितना है? हम्म. ओके. ओके. आपको दोनों भी देखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और कितने वीक्स के पहले कितने वीक्स के बाद, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है दैट यू आर सपोज टू सी. हम्म. या. Yes, yes. So, yes, so this is very basic thing, okay? So if you notice elevation or elevated blood pressure, okay, systolic 140 या उससे ज़्यादा है, diastolic 90 या उससे ज़्यादा है 20 वीक्स के बाद, तो you are going to call it as pregnancy induced hypertension, okay? उसके साथ साथ बाद में आपको ये दिखाई देता है, आपने यूरिन लिया, यूरिन प्रोटीन के लिए चेक किया, प्रोटीन यूरिया है, तो यू आर गोइंग टू कॉल दिस एज प्री एक्लाम्सिया, ओके? और अगर ऐसी है मदर जिसका BP एलिवेटेड है, प्रोटीन यूरिया है, एंड बाद में इफ शी एंटर्स इनटू कन्वल्जेंस और इवन इफ शी डेवलप्स कोमाटोस स्टेट, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज eclampsia. Okay, so this is very basic from your third year. Okay, so these preeclampsia and eclampsia can be the factors which can contribute to low birth weight of the baby. Okay, regarding SFD babies, again same things we are going to repeat. Okay, so SFD बेबीज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, मैटरनल फैक्टर्स में मैटरनल माल न्यूट्रिशन है, ओके? मदर को अगर सिवियर एनीमिया है तो यहाँ पे क्या होने वाला है SFD के लिए? IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ओके, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लो बर्थ वेट, ओके? तो मदर अगर सिवियरली एनेमिक है, ओके, इफ शी डज अगेन वेरी हेवी वेरी हार्ड वर्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके, या फिर वो हाइपरटेंसिव है, टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, ओके? अगर हम एज देखते हैं तो अगेन टीन एज में प्रेगनेंसी है तो IUGR की भी पॉसिबिलिटी है, स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ की भी पॉसिबिलिटी है, ओके? हाई पैरिटी दोनों जगह पे आता है, ओके? क्लोज बर्थ स्पेसिंग दोनों जगह पे आता है ये, ओके? Another important thing, that these things are basically interlinked, okay? What we can say, the mother belonging to poor family, okay, she is having low socio-economic status, okay? तो ऐसे families में जनरली क्या होता है, मदर इलिटरेट होती है, ओके? लिटरेसी लेवल उतना हाई नहीं रहता है, ओके? सो दे आर नॉट टेकिंग अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, ओके? तो न्यूट्रिशन अफेक्ट हो जाता है, अंडर नरिश्ड रहती है, बहुत सारे एनेमिक भी रहती है, ओके? सो बेसिकली ये लिंक है जो वेब ऑफ कॉजेशन में हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, ओके? तो बहुत सारे इंटरलिंक्ड फैक्टर है which can contribute to small for date babies, okay? If we think about fetal causes, okay, so there can be chromosomal abnormalities or there can be इंट्रायूटेराइन फीटल इन्फेक्शंस, ओके? तो अभी आपको वर्टिकल ट्रांसमिशन पता है, ओके? मदर को कुछ इन्फेक्शंस प्रेगनेंसी में हो जाते हैं तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन ट्रांसमिट, they can cross the placental barrier and these agents may get transmitted to the fetus and they can affect the developing fetus, okay? And it can affect the growth, okay? जैसे कि रूबेला वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ओके? तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में जितने भी एग्जाम्पल्स आपको पता है, ओके, सो दैट यू आर सपोज टू कोरिलेट हियर. तो अगर कोई इंट्रायूटेराइन फीटल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो there is possibility of low birth weight, okay? So there are different factors that are concerned with low birth weight. Now what we see, लो बर्थ वेट बेबीज का अगर बर्थ होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, ओके? क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस, उसका इफेक्ट जो होने वाला है वो बेबी के सर्वाइवल के ऊपर होने वाला है, तो हमें सर्वाइवल देखना है. सेकेंड जो इफेक्ट होने वाला है बेबी के ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होने वाला है, ओके? और थर्ड, ऐसे बेबी जब एडल्ट बन जाएंगे तो उनको कुछ हो सकता है क्या, ओके? सो दिस थ्री एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर इन
कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सर्वाइवल। ओके, तो सर्वाइवल में हम फोकस करते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के ऊपर। ओके, तो 1 साल तक अगर हम देखते हैं तो व्हाट वी कैन से, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन बर्थ वेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी। ये जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स है, मतलब जितना वेट कम होता जाएगा उतनी डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी पहले 1 साल में। ओके, सो सर्वाइवल के हम बारे में हमने क्या देखा, इनवर्स रिलेशन, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। राइट, ग्रोथ। ओके, सेकेंड फैक्टर ग्रोथ अगर हम देखते हैं, ये बेबीज का ग्रोथ कैसे होने वाला है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, what we can observe significant growth retardation। ओके, तो ऐसे बेबीज में ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगा ही रहेगा जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं विद द बेबीज हैविंग नॉर्मल बर्थ वेट। ओके, तो उनके साथ अगर इनका हम ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट दोनों कंपेयर करते हैं, ओके, तो दोनों में हमें रिटार्डेशन दिखाई देगा। ओके, तो जो स्किल्स एक्वायर करने हैं ये बच्चे उतना स्किल्स नहीं एक्वायर कर पाएंगे, जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं इज मेजरमेंट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑफ हाइट। ओके, तो 5 साल तक हम ये करते हैं, 5 साल तक अगर हम देखते हैं तो उनका वेट भी कम रह सकता है, ओके, हाइट भी कम रह सकता है। बर्थ के टाइम अगर आप देखते हो तो उनका हेड सरकमफरेंस है, ओके, दैट कैन बी लो। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, उनका ग्रोथ रिटार्डेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है। एंड एडल्ट स्टेज में जब वो जाते हैं तो क्या हो सकता है, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कंडक्ट किए हैं, ओके, तो उसमें एक हाइपोथेसिस है, दिस इज fetal origin hypothesis। okay, what we are saying, this is fetal origin hypothesis we are talking about। hypothesis another important terminology, okay, you are supposed to know for the chapter epidemiology। okay, तो ये fetal origin hypothesis जो epidemiological studies का research हमें बताता है, तो what it is saying, there is significant association between low birth weight। ओके, जो भी लो बर्थ वेट बेबीज है, ओके, जब ये एडल्ट बन जाएंगे तो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है लो बर्थ वेट एंड देर आर मेनी एनसीडीज बट फ्यू आई विल टेल यू हियर। CHD, there is possibility of NIIDM, okay, there is possibility of हाइपरटेंशन। ओके, सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है, दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी। ओके, तो आगे जाके उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज, ओके, NIDDM इज विच टाइप ऑफ दिस, डायबिटीज, यस, इट इज विच टाइप ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज झालं ना आपलं एनसीडीज मध्ये। NIDDM म्हणजे मग कुठला क्लासिफिकेशन झालंय ना, यू हॅव फिनिश्ड विथ क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, आय थिंक दिस चॅप्टर इज कवर्ड। NIDDM म्हणजे कुठला, नॉन इन्शुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, विच टाइप, which type, yes, it is type 2, which is mainly concerned with the lifestyle, which is mainly concerned with the lifestyle। okay, and major prevalence you can see nowadays of this NIDDM। okay, तो CHD, NIDDM, हाइपरटेंशन ऐसे जो NCD जो ऐसे है उनकी पॉसिबिलिटी या फिर सिग्निफिकेंट एसोसिएशन देखा गया है। ओके, सो कॉन्सिक्वेंसेस में इन्फेंट मोर्टालिटी ज़्यादा रहेगी जितना वेट कम रहेगा। ओके, ग्रोथ रिटार्डेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके, और ये फीटल ओरिजिन हाइपोथेसिस है। ओके, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज, दिस एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर व्हाट, yes, antenatal care। okay, ANTE, it's not TI। okay, please pay attention, ante is before,
ओके, नेटल इज बर्थ, बिफोर बर्थ जो हमें मदर की केयर लेनी है, दैट इज एंटीनेटल केयर. ओके, तो देयर शुड बी गुड एंटीनेटल केयर. ओके, देन देयर आर सर्टन इंटरवेंशन प्रोग्राम्स. ओके, तो हमें इंटरवेंशन करना है. ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन भी है. ओके, थर्डली हमें ट्रीटमेंट देनी है इन बेबीज को. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिस इज कंगारू मदर केयर. ओके, तो प्रिवेंशन में 4 एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है. सबसे पहला है एंटीनेटल केयर, गुड क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल केयर. Okay, right now we are not going to talk about antenatal care because this is another LAQ. Okay, details of this we are going to discuss in preventive obstetrics. Okay, then interventions जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है. ओके, कैसे हम ट्रीट करेंगे. और अनदर SAQ, that is kangaroo mother care. Okay, kangaroo mother care, don't forget, this is most important term here, KMC. Okay, so regarding interventions, that direct interventions what we are supposed to do. So most important here is identification of at-risk mother. Okay, जो at-risk mother है उन्हें हमें identify करना है. Okay, another important thing, we should have to pay attention to the diet of the mother during pregnancy. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, increase in फूड इनटेक. ओके, तो मदर का फूड इनटेक बढ़ाना है. अभी न्यूट्रिशन से आपको पता है. ओके, कैलोरीज भी एक्स्ट्रा देने हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट उसे एक्स्ट्रा देने हैं. लेकिन इसमें कम्युनिटी में या फिर गवर्नमेंट का जो फोकस रहता है, इट इज स्पेसिफिकली ऑन माल नरिश्ड और अंडर नरिश्ड मदर्स. ओके, तो उनके लिए उनके ऊपर हमें ध्यान देना है. ओके, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हाईली प्रिवेलेंट इन इंडिया, दैट इज एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, तो प्रेगनेंसी में एनीमिया है तो उसे हमें ट्रीट करना है. ओके, सो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया विथ आयरन एंड फॉलिक एसिड. तो ये ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, आयरन देते हैं, उसके साथ साथ फॉलिक एसिड देते हैं. ओके, न्यूट्रिशन जैसे कि हमने देखा, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन देना है. ओके, या फिर उसे एजुकेट करना है. इसके साथ साथ वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू दी ट्रीटमेंट. ओके, इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है ट्रीटमेंट ऑफ मैटरनल इन्फेक्शंस, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इंडिया में है. ओके, तो ये सब इन्फेक्शंस मदर के ANC में हमें अप्रोप्रिएट एग्जामिनेशन, अप्रोप्रिएट हिस्ट्री लेना है, जिससे हमें पता चलेगा कि उसे कुछ इन्फेक्शंस है क्या. अगर है तो उसे ट्रीट करना है. ओके, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, दैट इज टॉर्च. ओके, सो दिस विल बी होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. टॉर्च में कौन कौन से इन्फेक्शंस है, ओके, जो हमें डायग्नोज करने हैं, ये हमें देखना है. ओके, तो टॉर्च को हमें देखना है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इनडायरेक्टली हमें क्या करना है. तो हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन कि बर्थ स्पेसिंग है. ओके, बहुत क्लोज बर्थ स्पेसिंग है तो लो बर्थ वेट की पॉसिबिलिटी है. तो यहाँ पे हम फोकस कहाँ करेंगे, फैमिली प्लानिंग. ओके, सो अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग. तो हमें कपल को काउंसलिंग करना है फैमिली प्लानिंग के बारे में. ओके, एंड दे शुड बी मोटिवेटेड टू यूज वेरियस फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस. ओके, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है उनके बारे में हमें उन्हें बताना है, उन्हें मोटिवेट करना है, सो दैट दीज कपल्स दे कैन यूज दीज थिंग्स एंड वी कैन इंक्रीज द इंटरवल बिटवीन 2 बर्थ्स. ओके, तो इसके ऊपर फोकस करना है. उसके साथ साथ जो टीनेजर्स है, एडोलेसेंट गर्ल्स है, ओके, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें इम्प्रूव करना है. ओके, सो इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स. ओके, इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्प्रूव सैनिटेशन. ओके, हमें क्या करना है, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है. सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है क्योंकि इनडायरेक्टली ये कैसे रिलेटेड है, सैनिटेशन अगर पुअर है, ओके, लैक ऑफ हाइजीन है, तो मदर्स को इन्फेक्शन हो सकते हैं. ओके, दैट कैन अफेक्ट द बर्थ वेट ऑफ द बेबी. तो इनडायरेक्टली हमें सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है.
ओके। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हमने देखा, मदर अगर पुअर फैमिली में है तो इसका इम्पैक्ट होने वाला है, तो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, पूरे सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे कंट्री का है उससे हमें बढ़ाना है। ओके। और क्या हम कर सकते हैं, जो सोशल सर्विसेज है, मदर्स को स्पेसिफिक कुछ सर्विसेज मिलनी चाहिए, जैसे कि मैटरनिटी लीव। ओके, अगर उसे मैटरनिटी लीव मिलती है और विथ फुल वेजेस, अगर वो वर्किंग वुमेन है, मैटरनिटी लीव है, विथ फुल वेजेस है, तो डेफिनेटली इट कैन वर्क। ओके। अलॉन्ग विथ दिस, मैटरनल एजुकेशन, this is related with her lifestyle. Okay, so avoidance of smoking, avoidance of alcohol, and to be specifically in India, avoidance of tobacco consumption. Okay, so this is related with the direct interventions and indirect interventions. Don't forget the keywords. Okay, so whenever you mention interventions, these words must be there in your answer. Directly हम क्या करने वाले हैं, indirectly हम क्या करने वाले हैं. Okay. One more short aspect I will just finish regarding treatment. Okay, regarding treatment we are supposed to pay attention to the weight of the baby. Okay, तो 2.5 kg से कम है हमें पता है, तो इसमें हम वापस कैटेगराइजेशन करने वाले हैं, लेस देन 2 kg कितने हैं और 2 to 2.5 तक कितने हैं. ओके, तो जो लेस देन 2 kg है दे रिक्वायर इंटेंसिव केयर. ओके, और जो 2 to 2.5 kg के बीच में है दे रिक्वायर रूटीन केयर. नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट नियोनेटल केयर विच इज अनदर LAQ you asked. ओके, डिटेल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स. ओके, तो ट्रीटमेंट में हमने 2 कैटेगराइजेशन किए, हमें इंटेंसिव केयर को पढ़ना है, इंटेंसिव नियोनेटल केयर, और हमें रूटीन केयर को पढ़ना है. ओके, KMC के बारे में वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, thank you. Thanks to all of you.